Assalamu alaikum. I am Amna Niazi from APS Fort Road with Computer Science lecture number 5 for class 10th, and the topic is flowcharts. So what are the topics? First of all, we will have the concept of flowcharts, their importance, the different steps for drawing a flowchart, symbols used in flowcharts, and some sample flowchart examples. What are the objectives? Students will be able to learn the concept of flowcharts, their importance, different steps, and the symbols used to draw the flowcharts. Students will also be shown some sample flowcharts for the clarity of the concept. First of all, what are the flowcharts? Flowchart is basically a diagrammatic or pictorial representation of an algorithm. It basically describes that what operations are required to solve a given problem. Now come to the importance. Flowcharts illustrate the sequence of operations to be performed to solve a problem in the form of a diagram. Basically, when we represent the algorithm in a picture form, it is called a flowchart. It provides an easy way to analyze and find the solutions of the problems. It is very helpful in communicating the problem solving method to other people. And last, it also helps in finding and removing errors in computer programs, means it helps in debugging of computer programs. What are the different steps of drawing a flowchart? First of all, the input to the flowchart, then the type of the processing or formulas required, decisions to be taken, any if-else statement, and the output to be produced after the processing. First of all, the input. The flowchart developer must know that what exactly the input to the flowchart is, means what data is required. The input is determined from the problem statement. For example, if we have a problem to convert the temperature from Fahrenheit to Celsius, then the temperature that will given in Fahrenheit will be the input to the program or problem. Next is the processing. The flowchart developer must decide that what type of calculation is to be performed or which formula is to be used to obtain the required result. For example, if we have to find out the area of a triangle, then the formula given is area is equals to base into height divided by 2. This is the processing of the given problem. Next is the decision. The flowchart developer must decide that which control structures are to be applied for the solution of the problem. There are different control structures: sequence, repetition, or selection. We will discuss them later on. Example is selection structure must be applied to print letter grade of a student based on the marks obtained. The selection structure will check in which range the marks fall and accordingly print the grade. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, आपने उसकी बेसिस पे उसका ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो आपने ग्रेड की सिलेक्शन करनी है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स रेंज, कि अगर उसके मार्क्स 80% से 100% में फॉल होते हैं, आप उसको कौन सा ग्रेड अलॉट कर रहे हैं, एंड सो ऑन. लास्ट वन इज द आउटपुट. द फ्लो चार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट. Now the different flowchart symbols. First one is the flow line. Basically, this is a line with an arrowhead. It is a line with an arrowhead used to connect various flowchart symbols and indicates the flow of control in the flowchart. ये different symbols के दरमियान connectivity के लिए हम flow line को use करते हैं. And secondly, इसमें जो arrowhead की direction है वो show करती है कि आपका control किस direction में flow कर रहा है. Next is the start and stop symbol. It is basically a rounded rectangular shaped symbol which is used to indicate the start and end of a flowchart, and you can only write the words start or stop inside this symbol. A flowchart can have one start, but it may have many ends depending on the program. Next is the input-output symbol. Parallelogram is used for the input or output operations in a flowchart. It contains the word read or input for input and the word print or output for the output data in a flowchart. Next is the process symbol. A rectangular block is used for process in a data processing operation. All the calculations or formulas appear inside the processing symbol. For example, sum is equals to a plus b, or if a variable is initialized with any
value, for example k is equals to 1, that has to be shown in a process symbol. यानी आपने तमाम formulas को और जो variables को values initialize करनी है या values assign करनी है, वो सारा काम आपने करना है process के symbol के अंदर. Next one is the decision symbol. Diamond shaped symbol represents the decision in a flowchart and it contains a condition. एक condition होगी आपके पास decision symbol में, जिस condition की base पे आपने अपना decision लेना होगा. If the condition is true, the path marked yes to be followed, and if the condition is false, the path marked no is to be followed. जब आप इसको डिफरेंट फ्लो चार्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे तो यू विल कम टू नो कि डिसीजन सिंबल से दो लाइंस ओरिजिनेट होती हैं. एक लाइन हम येस के साथ फॉलो करते हैं, एक हम नो के साथ फॉलो करते हैं. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपने येस वाले पाथ को फॉलो करना है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपने नो वाले पाथ को फॉलो करना है. द लास्ट वन इज़ द कनेक्टर सिंबल्स. बेसिकली जब आपके फ्लो चार्ट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेज पे एक फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, या अगर आपने डिफरेंट डिसीजन की बेसिस पे एक पॉइंट पे आके मीट अप करना है, तो उसके लिए हम कनेक्टर सिंबल्स को यूज़ करेंगे. दीज सिंबल्स आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट टू द अदर ऑन द सेम पेज. अगर आपका फ्लो चार्ट एक ही पेज पे डिफरेंट पार्ट्स में कनेक्ट हो रहा है तो यू हैव टू यूज़ ऑन पेज कनेक्टेड, जो कि सर्कल की फॉर्म में है. और अगर आपके पास आपका फ्लो चार्ट एक से ज़्यादा पेजेस पे आ रहा है, न्यू पेज पे जा रहा है, तो यू हैव टू यूज़ ऑफ पेज कनेक्टर, जिसके सिंबल आपके पास शोन है. नाउ कम टू डिफरेंट फ्लो चार्ट एग्जाम्पल्स. आपने पहले एल्गोरिदम्स का टॉपिक पढ़ा है, आपने जितनी एल्गोरिदम की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, अब उन तमाम एल्गोरिदम्स के लिए हमारे पास फ्लो चार्ट्स आ जाएंगे. फर्स्ट वन इज द फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. जैसा कि आपको पहले सर ने इसकी सारी लॉजिक एक्सप्लेन की थी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हम अब इसको फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एल्गोरिदम था उसमें था स्टार्ट. तो आपने रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक है, राउंडेड रेक्टेंगल, उसके अंदर आपने स्टार्ट लेना है. उसके बाद आपने फ्लो लाइन के थ्रू उसको कनेक्ट कर देना है इनपुट के साथ. इनपुट आपने पैरेललोग्राम में शो करनी है, और इस प्रोग्राम में हमारे पास 5 नंबर्स इनपुट पे हैं, A, B, C, D एंड E. आपने उन वेरिएबल्स के सिर्फ नेम्स लिखने हैं. इनपुट के बाद आ जाती है हमारे पास प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के लिए आपने देखा, आपने फ्लो लाइन के बाद रेक्टेंगल यूज़ किया है. प्रोसेसिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सम कैलकुलेट करना है, दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E. सेकेंड फॉर्मूला आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट की थी, A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू E. एंड लास्ट पे आपने उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी थी, तो एवरेज वॉज सम बाय 5. तो ये सारी प्रोसेसिंग आपने प्रोसेस के सिंबल यानी रेक्टेंगल में की है. आप इसके लिए 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स भी यूज़ कर सकते थे, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप सारी प्रोसेसिंग को एक ही रेक्टेंगल के अंदर शो करवाएं. प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास थी आउटपुट. तो आउटपुट पे हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी. जो जो वेरिएबल्स आपको आउटपुट पे रिक्वायर्ड थे, आपने आउटपुट वाले पैरेललोग्राम में आउटपुट के कीवर्ड के साथ उन वेरिएबल्स के नेम दिए, मींस आउटपुट, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, एंड देन स्टॉप. यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वन वाज द फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 अनइक्वल नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट. उसके बाद आपने इनपुट पे 3 नंबर्स दिए, A, B एंड C. उसके बाद आपके पास आ गई डिसीजन. अब आपने 3 नंबर्स का कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट नंबर को सेकंड और थर्ड से कंपेयर करना है, फिर सेकंड नंबर को फर्स्ट और थर्ड के साथ कंपेयर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसीजन सिंबल है उसमें आप देख सकते हैं आपने कंपेयर किया है A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C. एंड मीन्स के दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू हैं, तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा. अगर तो A B से बड़ा है और A C से भी बड़ा है, इफ़ इट इज़ येस, तो आपके पास हमने आउटपुट पे येस के केस में आउटपुट पे A को डिस्प्ले करा दिया, मींस A इज़ द लार्जेस्ट. अगर उन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं, तो आपने नो के पाथ को फॉलो करना है. उसके बाद आपने सेकंड कंडीशन चेक करनी है. सेकंड कंडीशन में आप चेक कर रहे हैं इफ़ B इज़ ग्रेटर देन A एंड B इज़ ग्रेटर देन C. इसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है बिकॉज इट इज़ अ कंडीशन. अगर B A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो यस के केस में मींस आउटपुट पे आपने B को दिया. और नो के केस में क्या है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि C लार्जेस्ट है. आपने पहली कंडीशन चेक की, वो भी फॉल्स थी कि A लार्जेस्ट नहीं था. सेकंड कंडीशन चेक की, दैट वाज आल्सो फॉल्स, B भी लार्जेस्ट नहीं था. तो नो के केस में थर्ड पे ऑटोमेटिकली सी बात है कि C इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो आपने आउटपुट पे C देना है. और क्योंकि ये तीनों में से कोई एक भी चीज़ पॉसिबिलिटी आउटपुट पे आएगी, तो इन तीनों के अगेंस्ट आपने एक ऑन पेज कनेक्टर यूज़ किया, मीन्स ये तीनों पाथ जो है वो एक पॉइंट पे आके मीट होंगे. उसके बाद हमारे पास आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा, तो आपने उसके बाद कनेक्टर के बाद स्टॉप का सिंबल यूज़ किया है.
नेक्स्ट भी बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है कि आपने एक क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अगर आपको इसकी एक साइड की लेंथ गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, इनपुट पे आपको लेंथ गिवन है और आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम बेसिकली है लेंथ क्यूब। तो आपने प्रोसेसिंग में फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू L इंटू L। यू कैन ऑल्सो राइट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L क्यूब और L पावर 3। और उसके बाद आपने आउटपुट के ऊपर वॉल्यूम को डिस्प्ले करवाना है, तो आउटपुट V, वेरिएबल नेम आपके पास यहाँ पे V है वॉल्यूम के लिए, एंड देन स्टॉप। Next is the flow chart to find the acceleration of a moving object with given mass and the force applied. Start. Input पे जो variables हैं that are force and mass वो आपने parallelogram में show किया। आपकी जो processing या formula था that was acceleration is equals to force divided by mass, वो हमने rectangle पे show किया। उसके बाद फ्लो लाइन के बाद हम आ गए आउटपुट पे, एंड आउटपुट पे आपने एक्सेलरेशन को शो करवाना है, तो आउटपुट के कीवर्ड के साथ आपने एक्सेलरेशन के वेरिएबल का नेम दे दिया, एंड देन द फ्लो चार्ट इज स्टॉप्ड। Next, the flow chart to find the area of a triangle when the length of height and base are given. Start. Input पे जो variables हैं these are base and height, B and H. Formula is area और A is equals to B into H divided by 2. और आउटपुट पे आपने एरिया को शो करवाना है आउटपुट A एंड देन अगेन स्टॉप। ये तमाम फ्लो चार्ट्स आपने पहले एल्गोरिथम्स में डिस्कस किए हैं, फिर भी आपको इनके लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। Next is the flow chart to read the marks M and print the letter grade according to the given criteria. Criteria उन्होंने आपको बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टार्ट है इनपुट पे M मींस मार्क्स, आपको स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है। अब आपने डिफरेंट डिसीजन सिंबल्स के अंदर उसकी रेंज चेक करनी है और उस रेंज के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करना है। अगर उसके मार्क्स इफ M इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर तो उसके मार्क्स 80 के इक्वल या उससे बड़े हैं, यस के केस में आपने आउटपुट पे देना है A1 मींस कि उसका ग्रेड जो है वो A1 है। यहाँ पे अब हमने डबल कॉमर्स में A1 को क्यों शो किया है, क्योंकि ये एक वेरिएबल का नेम नहीं है, ये उसकी वैल्यू है। A1 जो है वो उसके ग्रेड की वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल की है, इसलिए हमने इसको डबल कॉमर्स में शो किया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, नो मीन्स आपके पास मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है, और आपने नेक्स्ट कंडीशन चेक की मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, इफ यस देन ग्रेड इज A। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है आप आएंगे नेक्स्ट कंडीशन पे, नो के केस में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, उसके लिए ग्रेड इज B। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ग्रेड इज C। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो आप देखें ऊपर वाले सारी कंडीशंस फॉल्स है। नेक्स्ट कंडीशन बनेगी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, उस केस में ग्रेड D है, और अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो ग्रेड E है। अब अगर ये लास्ट वाली कंडीशन भी फॉल्स है, मींस कि उसके मार्क्स जो हैं वो 33 से भी कम हैं, वो कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, यानी ग्रेटर देन 33 नहीं है, उस केस में आपने आउटपुट पे अनग्रेडेड करना है, ठीक है, यानी उस स्टूडेंट को कोई भी ग्रेड असाइन नहीं हुआ जिसके मार्क्स लेस देन 33 हैं। और इन सब में से जोन सी भी आउटपुट आपके पास करेक्ट होगी, उसके बाद आप लोगों ने स्टॉप पे आ जाना है, यानी जोन सा भी डिसीजन सिंबल में जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, उसकी बेसिस पे आप आउटपुट पे ग्रेड असाइन करेंगे और उसके बाद आप स्टॉप कर देंगे प्रोग्राम को। So the success criteria is students have learned the concept of flowcharts, their importance, steps and the different symbols used to draw the flowcharts. Students have also learned the method for drawing different example flowcharts. Now come to your assignment. First question is what is a flowchart? You have to define the flowchart and what are the advantages of using flowcharts. इसमें आप importance of flowchart वाले topic को relate कर सकते हैं. Second question is draw any 4 graphical symbols used in a flowchart and explain them. You have to explain the purpose of the symbol. Next one is the draw a flowchart to find the sum of the given sequence. आपको एक sequence given है जो कि 20 से start हो रहा है और 60 पे end हो रहा है with an increment of +5. ठीक है, तो आपने इस सीक्वेंस का सम कैलकुलेट करना है। आपने लास्ट असाइनमेंट में इसका एल्गोरिथम किया हुआ है, उस एल्गोरिथम को अब आपने उसके स्टेप्स को मैप करना है एक फ्लो चार्ट में। जो चीज़ें इनपुट पे गिवन है वो इनपुट में शो करनी है, जो प्रोसेसिंग में है प्रोसेसिंग के सिंबल में, डिसीजन जो होगा, जो कंडीशन चेक हो रही है लेस देन इक्वल टू 60 वाली जो चीज़ है वो आपने यूज़ करनी है डिसीजन के सिंबल में। और जो इंक्रीमेंट है याद रखिएगा, जो वेरिएबल में इंक्रीमेंट +5 का हो रहा है जिस तरह इस प्रोग्राम में, तो इंक्रीमेंट को भी आपने प्रोसेस के सिंबल में यानी कि रेक्टेंगल में शो करना होगा। नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये सेम ऊपर वाले की तरह, डिफरेंस ये है कि सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से 15 तक है, ऊपर वाली आपके पास 20 से 60 तक थी।
उसमें सम कैलकुलेट करना था, इसमें आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है और हर बार जो इंक्रीमेंट या इंक्रीज है वो +2 का आ रहा है आपके पास, मीन्स 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15. लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, मीन्स अगर आप 5 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 × 10 = 50 प्रिंट होना चाहिए और ये फिर रिवर्स ऑर्डर में 5 × 1 = 5 तक आपके पास प्रिंट होगा. कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है असाइनमेंट में तो आप अपनी टीचर से फ्रीली पूछ सकते हैं. थैंक यू.